Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So last night SBI PO notification was released. And after seeing the notification, we are sad and happy both. We are sad because the number of vacancies are very low as compared to preceding years. But we are happy that at least notification has come because many people were saying it may not come this year. So there is a mixed reaction. At least notification is there. At least some people will get the job, and it is better than not having a notification. But since we are seeing around 2000 vacancies every year, so by seeing the 600 vacancies, it is natural that we have gone into a stage of shock. And this was obvious. Although 4 years ago, I discussed some very peculiar aspect about banking industry, that post 2024 retirement in banking is low. And as retirement is low from 2025 till 2031, we may see fall in vacancies. At that time, many people were not accepting that. Even yesterday also, I have seen a comment before this SBI PO notification on my channel. Sir, earlier you were used to say there may be fall in vacancies, but vacancies are reasonable. But with the SBI PO notification, that fear is now coming to be true. Because up to 2024, the retirement fallen in last many years. But from 2025 onwards, the retirements are very, very low. Because in early 80s, after computerization started in around 19, we can say 84 or so, after Rajiv Gandhi becoming the Prime Minister of country, the computerization started in India. And after 1986 onwards, the requirement of staff in banking reduced. And that has resulted into lesser intake post 1986 till 1991. And from 1991 onwards, again some recruitment was increased. So this hiccup effect will remain from 2025 to 2031. The vacancies on account of retirement may fall, but vacancies on expansion of branches, on growth of banking may continue to come. But the positive factor that is happening these days is there are resignations also. In earlier year of banking in 1980s and 1990s, when this was stated to be best job, the resignations were very less. But these days, as many people are shifting from one field to another shift, so there are selection in 1 year and there are resignations also. So and that resignation is resulting into vacancies. So we will have a mixed bag of vacancies in coming years, and this is a shocker, but still there is a positive silver lining in the notification. These vacancies are subject to change. In earlier notification of SBI, there was no such line, but in this year they have mentioned this is subject to change. So in a best case scenario, we may see some uptick also, but again, it is subject to many factors. So anyhow, whatever is the vacancies, we must work on that. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल SBI PO का नोटिफिकेशन आया और मिक्स्ड फीलिंग्स हमें आई. एक तरफ खुशी का माहौल और एक तरफ दुख का माहौल. खुशी इस बात की कि नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता था नोटिफिकेशन नहीं आएगा. मगर नोटिफिकेशन आया, वैकेंसीज बहुत कम. यूजुअली 2000 वैकेंसीज आती हैं, इसमें मात्र 600 वैकेंसीज
तो एक नेचुरल है कि जो हमारा एक लेवल है एक्सपेक्टेशन का कि इतनी वैकेंसीज आती हैं वो नहीं आई, तो दुख होना स्वाभाविक था। वैकेंसीज कम क्यों आई, इस पे भी कुछ लोगों के प्रश्न है। वैकेंसीज ज़्यादा क्यों नहीं आई, इस पे भी लोगों के प्रश्न है। तो इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। लगभग 4 साल पहले मैंने एक वीडियो के जरिए एक आपको बात समझाई थी कि 2024 के बाद बैंकिंग में रिटायरमेंट बहुत कम हो जाएगी 2025 से लेकर 2031 तक। और क्योंकि रिटायरमेंट कम हो जाएगी तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिटायरमेंट की वजह से वैकेंसीज बनती हैं उनके कम होने का अंदेशा है। उस समय काफ़ी लोगों ने इस बात को ठीक नहीं माना था, काफ़ी लोगों ने रिएक्शन भी किया था। कल भी एक कैंडिडेट ने इस नोटिफिकेशन के आने से पहले कटाक्ष किया था कि सर आप तो कहा करते थे वैकेंसीज कम हो जाएंगी, पर वैकेंसीज तो ठीक ठाक आ रही हैं। पर SBI PO नोटिफिकेशन आते ही उस व्यक्ति ने अपना कमेंट शायद हटा लिया या मुझे अभी विजिबल नहीं है। मेरा मानना यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझना जरूरी है, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी सोचना जरूरी है। देखो, लगभग 1984 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस कंट्री में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की। और जब कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की तो शुरू के सालों में ऐसा लगने लगा कि अब स्टाफ की कम रिक्वायरमेंट है। और 1986 ऑनवर्ड्स 1991 तक बैंकिंग में रिक्रूटमेंट लगभग ठहर सी गई। अब क्योंकि उन सालों में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो उन सालों के उन वर्षों के आपके पास एम्प्लॉइज़ भी नहीं है, एम्प्लॉइज़ नहीं है तो वो रिटायर भी नहीं होंगे। और 1991 के बाद दोबारा रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई तो नेचुरल है वो लोग रिटायर होंगे जब उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट आएगी, और वो आएगी 2031 के बाद से। तो 2025 से 2031 का एक ऐसा पीरियड आएगा जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में रिटायरमेंट काफ़ी कम होगी। तो जो वैकेंसीज रिटायरमेंट की वजह से बनती है वो नेचुरल है जनरेट नहीं होंगी, पर जो वैकेंसीज बिजनेस ग्रोथ की वजह से बनती है, नई ब्रांचेस खुलने की वजह से बनती है, वो होती रहेंगी। तो इसलिए एक मिक्स्ड बैग ऑफ वैकेंसीज ही इन वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। आल्दो ये शॉकर है उन लोगों के लिए जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी, पर जिन लोगों ने वो वीडियो 4 वर्ष पहले देखी थी वो आज इस बात को मानते हैं कि सर आपने ये बात तो हमें काफ़ी वर्ष पहले बता दी थी। मगर अभी एक फैक्टर पॉजिटिव भी हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो। पहले क्या होता था, जो बैंकिंग में आता था रिज़ाइन नहीं करता था, रिटायरमेंट तक नौकरी करता था, तो वैकेंसी रिटायरमेंट पे ही बनती थी उसकी। पर अभी पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड ये है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर रिज़ाइन कर देते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, फिर वहाँ रिज़ाइन कर देते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं। तो अब रेजिग्नेशन की वजह से भी वैकेंसीज बनती जा रही हैं हर संस्था में। तो क्योंकि बैंकिंग में भी रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, चाहे वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए हो, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाने के लिए हो, तो आप ये देखेंगे कि जो रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंसीज हैं वो आती रहेंगी, बिजनेस ग्रोथ की वजह से जो वैकेंसीज हैं वो आती रहेंगी, पर जो रिटायरमेंट की रिप्लेसमेंट की वैकेंसीज बनती हैं वो कम बनेंगी। तो ये एक मतलब पोजीशन रहेगी, हमें इसके लिए साइकोलॉजिकली तैयार रहना है। और ये अक्रॉस सब सेक्टर्स होगा, क्योंकि जो कंप्यूटराइजेशन हुआ था वो अक्रॉस सेक्टर हुआ था, तो इसलिए उसका असर सभी सेक्टर्स के अंदर जॉब के ऊपर देखने में मिलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी स्लगिश चल रही है, आपने देखा होगा GDP का जो ग्रोथ था कम था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा थी ये जानने की कि वैकेंसीज कम क्यों हैं। मगर जो भी हैं, जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, और जो सच है उसका हमें सामना करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।